جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے لاسٹ لیکچر میں ہم نے 3 شارٹ کویسچنز پڑھے تھے، جن میں ہم نے 1935 کا ایکٹ پڑھا، لاہور ریزولوشن پڑھا، اور اس کے ساتھ ہم نے الہ آباد ایڈریس پڑھا۔ یہ 3 ٹاپک پڑھے تھے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچن تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک لانگ کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں، اور لانگ کویسچن کیا ہے بیٹے؟ ذرا بولیے، نام کیا ہے؟ کرپس مشن۔ اونچا بولیے، کیا؟ کرپس مشن۔ جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر پہلی لائن پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے پس منظر۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ابھی بڑے دھیان سے سن لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات، ابھی یاد ہو جائے گی۔ بولیے کیا لکھنا ہے آپ نے بیٹا؟ پہلی ہیڈنگ پس منظر، بیک گراؤنڈ۔ اچھا، اب پہلے آپ ذرا ٹاپک سمجھ لیں کہ ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ آپ نے پہلے لکھ لی، جب آپ کو ذہنی طور پر سکیچ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ بک سے یاد کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ ادھر دیکھیے میرے بیٹو، آپ یہ بات بچپن سے جانتے ہیں کہ بر صغیر میں حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی۔ اور یہاں پر کون کون سی قومیں رہ رہی تھیں؟ ایک مسلمان رہتے تھے اور دوسرے ہندو رہتے۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری قومیں رہتی تھی، لیکن بڑی قومیں یہ 2 تھیں، مسلمان اور ہندو، اور ان پر حکومت کون کر رہے تھے؟ انگریز۔ اچھا، اب ہوا بیٹے یہ، سٹوری سنو، سٹوری۔ اب ہوا بیٹا یہ کہ 1939 سے لے کر 1945 تک ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار۔ بولیے، سیکنڈ ورلڈ وار کب سے کب تک ہوئی؟ 1939 سے لے کر 1945 تک۔ اس فرسٹ ورلڈ وار میں 2 بڑے بلاک تھے ملکوں کے، آپ یوں سمجھ لیں پوری دنیا میں سے، ٹھیک ہے، 2 بلاک بن گئے، آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا ایک طرف۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا ایک۔ اب وہ جو 2 طرفوں میں، صاف ظاہر ہے اگر 2 پارٹ بن رہے ہیں تو کوئی ان کا لیڈر بھی ہوگا۔ ایک طرف تھا برطانیہ اور ایک طرف تھا جاپان۔ بولیے، ایک طرف تھا برطانیہ اور ایک طرف تھا جاپان، یعنی یہ 2 بلاک بن گئے نا، 2 پارٹیشن ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو برطانیہ تھا، برطانیہ سے مراد کون سے لوگ؟ انگریز۔ بر صغیر میں حکومت بھی اسی برطانیہ کی تھی۔ اب جنگ تو شروع ہو گئی 1939 میں، 1939 میں جنگ شروع ہو گئی۔ اچھا، اب جب جنگ شروع ہوئی 1939 میں تو بیٹے جنگ ہوتے ہوتے ختم کب ہوئی؟ 1945۔ جب آیا نا 1942 تو برطانیہ جنگ ہار رہا تھا، جاپان جنگ جیت رہا تھا۔ اب بر صغیر میں حکومت کن کی تھی؟ جاپان کی یا برطانیہ کی؟ بولیے بیٹا، برطانیہ کی۔ انگریزوں کا تعلق کس سے تھا؟ برطانیہ۔ برطانیہ کی حکومت تھی بر صغیر میں۔ اب جب جاپان جنگ جیت رہا تھا نا تو بر صغیر کے جو لوگ تھے ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئیں اور کن کے ساتھ ہونا شروع ہو گئیں؟ جس سے انگریزوں کو یہ لگا کہ آنے والے وقتوں میں بر صغیر سے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی اور یہاں کون حکومت کرنے آ جائے گا؟ جاپان۔ میرے بیٹو، میں آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں، آپ کو پوری سٹوری سنا رہا ہوں، سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ پھر مجھے بتاؤ، بر صغیر میں کن کی حکومت تھی؟ برطانیہ کی، انگریزوں کی۔ یا کتنی قومیں بڑی رہ رہی تھیں؟ 2۔ کون کون سی؟ ہندو اور مسلمان۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کب سے کب تک ہوئی؟ 1939 سے 1945۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس سیکنڈ ورلڈ وار میں 2 بلاک بنے، ایک طرف کون تھا؟ برطانیہ، اور ایک طرف کون تھا؟ جاپان۔ 1939 میں جنگ شروع ہوئی، 1949 تک کون جنگ جیت رہا تھا؟ جاپان۔ اور کون ہار رہا تھا؟ برطانیہ۔ جس کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں کی انگریزوں کے ساتھ بھی ہمدردیاں ختم، اور کن کے ساتھ شروع ہو گئیں؟ جاپانیز کے ساتھ ہو گئیں۔ اور جب ہمدردیاں بھی ہو گئیں
जंग भी वो जीत रहे थे, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि बड़े सगीर में आने वाले दिनों में हमारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ बड़े सगीर में हुकूमत किन की हो जाएगी? जापानियों की। अब मेरा पुत्र, जब उन्हें ये खदशा लगा, किन को? अंग्रेज़ों को, बरतानिया को, अंग्रेज़ों को, जब उन्हें ये खदशा लगा कि हमारी यहाँ से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी ना, तो उन्होंने बरतानिया से एक बंदा बर्रे सगीर भेजा, जिस बंदे का नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स। बोलिए बेटे, क्या नाम था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो खाता था चिप्स। क्या क्या नाम था उसका? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो खाता था चिप्स। उसको भेजा कहाँ से? बरतानिया से भेजा। किन्होंने? अंग्रेजों ने भेजा कि तुम जाओ बर्रे सगीर, और भेजा कब? 1942 में, कि तुम बर्रे सगीर जाओ और जाकर किन से मिलो? और किन से मिलो? हिंदुओं से। हिंदुओं से जाके मिलो, उनसे जाके 4 बातें करो। कितनी बातें करो? 4, ताकि वो इस बात पर राजी हो जाएं कि हम जंग जीते या जंग हारें, बर्रे सगीर में हुकूमत फिर भी किन की रहेगी? कौन सी जंग जीते या हारें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई है? 1939 से 1945। समझ तो नहीं आ रही बात की? अब हमने ये पढ़ना है आज के टॉपिक में कि वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स वो 4 बातें कौन सी लेकर आया। जब उसने आके मुसलमानों और हिंदुओं से वो 4 बातें की, तो मुसलमानों और हिंदुओं ने उन 4 बातों के बारे में क्या कहा, ये आज का हमारा टॉपिक है। बताओ, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब बेटा देखो, अपनी बुक पर 4 बातें लिखी हुई हैं। पहले पॉइंट पर हेडिंग लिखो। ये आपने इसको सब हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। पहले पॉइंट पर हेडिंग लिखो, बर्रे सगीर ताजे बरतानिया के मातहत, सब कॉन्टिनेंट विल अंडर द क्राउन। सब कॉन्टिनेंट विल अंडर द क्राउन। जी बेटा, मैं आपको समझाता जाऊंगा, साथ रीडिंग होती जाएगी, बात मुकम्मल हो जाएगी। पहली बात किसने की आके बर्रे सगीर में? बोलिए बोलिए बेटा। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। मेरे लेक्चर में रहें, इस बात को समझें, एक्टिव रहें, और एक लम्हे के लिए भी दिमाग को इधर उधर ना होने दें। फिर क्या होगा, वरना ये बात सारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। मैंने ये बताया कि वो इस बात को पक्का करने के लिए कि हम जंग जीतें या जंग हारें, बर्रे सगीर में हुकूमत फिर भी किन की रहेगी? अब ना यहाँ की अवाम को मनाने के लिए कौन आया? कितनी बातें लेकर आया? पहली बात बोलिए, उसने क्या की? बर्रे सगीर ताजे बरतानिया के मात। ये मैंने आपको हेडिंग लिखवा दी। अब इसकी डिटेल में ये लिखा हुआ है कि वो आया, उसने आके हिंदू और मुसलमानों को कहा कि यार हम जंग जीतें या जंग हारें, प्लीज़ हमारी हुकूमत यहाँ रहनी चाहिए, हमारी हुकूमत यहाँ से ख़त्म ना। और उसके लिए उसने क्या किया? उसने कहा प्लीज़ हमारी हुकूमत यहाँ रहे, हम बर्रे सगीर के अंदरूनी बैरूनी किसी भी मामले में इंटरप्शन नहीं करेंगे, हम आपको हिंदू और मुसलमानों को तंग नहीं करेंगे, बस ऊपर हुकूमत हमारी रहे, आप नीचे अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें, हमें कुछ भी ना, हम आपको कुछ कहेंगे ना आप हमें कुछ कहेंगे, बस हमारी हुकूमत बर्रे सगीर में रहनी चाहिए। उसके लिए हम आपको अंदरूनी बैरूनी मामलात में जितने भी बर्रे सगीर के मामलात होंगे उनको आपको हम आज़ादी दे देंगे, आप अपनी मर्जी से करें, बस ऊपर हुकूमत किसकी रहनी चाहिए? बरतानिया की, हमारी। कौन कहने के लिए आया? कौन आया? सर स्टैफर्ड क्रिप्स आया। उसने आके क्या बात कही? ऊपर से देख के बोलिए, क्या कहा उसने, जरा मेरे साथ बोलिएगा। क्या कहता है? बोलिए, जंग के बाद बर्रे सगीर ताजे बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करे। उन्होंने कहा जी हम आपके मामलात को तंग
नहीं करेंगे। ये एक किस्म की ऑफर करवाई ना, जैसे आप लोग सब कंप्लेन कर दें कि हमने सारी नाम से नहीं पढ़ना, अब मुझे ख़तरा लायक हो जाए, मेरी जॉब चली जाएगी हैं, तो मैं आप लोगों से आके बात करूं कि बेटा बस पढ़ाऊंगा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, ना टेस्ट लूँगा, ना किताबें पढ़ाऊँगा, ना कुछ करूँगा, बस लेकिन प्लीज़ काइंडली मुझे रखिए। तो बेटा ऐसी सिचुएशन को इसने आके बयान किया कि प्लीज़ हुकूमत हमारी रहने दीजिए, हम आपके किसी मामले में आपको तंग नहीं। अब फिर बोलो, समझ आई बेटे अब आपको? ठीक है, अब ज़रा रीड करें दोबारा। क्या कहा उसने? पहली तजवीज़ क्या दी उसने? जंग के बाद बरे सगीर ताजे बरतानिया के मातहत हो, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज करे। अगला पॉइंट लिखो बेटा, तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के स्पुर्द, तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के स्पुर्द। जी, ऑल अफेयर्स हैंडेड ओवर टू इंडियंस, ऑल अफेयर्स हैंडेड ओवर टू इंडियंस। जी बेटा, हुकूमत का काम होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाना, मुल्क के इदारे चलाना। मुल्क के बड़े बड़े इदारे बेटा, एक इदारे का नाम है दिफा, दिफा जिसको आप डिफेंस बोलते हैं। एक मुल्क का इदारा होता है अमूर खारजा, जिसको फॉरेन अफेयर बोलते हैं, बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात कायम करने वाला इदारा। एक होता है बेटा मीडिया, जिसको आप मवासलात बोलते हैं। इसी तरह बेटा एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है। ये बड़े बड़े इदारे होते हैं मुल्क, और हुकूमत ने इन इदारों को चलाना होता है। अब चूंकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम जंग जीतें या जंग हारें, बरसगीर में हुकूमत किसकी रहे? बोलिए बोलिए, किसकी रहे? अंग्रेज़ों की, बरतानिया की, हमारी रहे। उनकी ख्वाहिश ये थी। अब उन्होंने अगली एक और ऑफर करवाई, इसमें भी उन्होंने कहा कि प्लीज़ हुकूमत हमारी रहने दीजिए, हम अंदरूनी बरूनी मामलात में मुदाखलत भी नहीं करेंगे। अब अगली एक और वजाहत कर दी अगले पॉइंट में, कहा मुल्क के जो बड़े बड़े इदारे हैं ना, वो भी हम किन के हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन प्लीज़ हुकूमत हमारी रहने दे। नहीं समझे मेरी बात को? हुकूमत हमारी रहने दे। उसमें उन्होंने कहा कौन कौन से इदारे बड़े बड़े, कौन कौन से? बोलिए। नंबर 1 दिफा, अमूरे खारजा और मवासलात समेत तमाम शोबे हम किन के हैंड ओवर कर देंगे? हिंदुस्तानियों के। समझ तो नहीं आ रही बेटे बात की? ये बातें किसने आके की? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो खाता था चिप्स। ठीक है, ये उसने बोलिए जरा, बुक से देखकर भी बोल दीजिए। क्या कहा बेटे? क्या लिखा हुआ है? दिफा, ऊंचा ऊंचा बोलिए। दिफा, अमूरे खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट बाद में समझाता हूं, पहले चौथे पॉइंट पर हेडिंग लिखो। तीसरे पॉइंट पर हेडिंग लिख लो, समझाऊंगा बाद में। ठीक है, आइन बनाना। तीसरे पर लिखें आइन बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी जल्दी फॉर्मेशन ऑफ हेडिंग लिख लें, समझाता बाद में हूं। अब चौथे पर हेडिंग लिखें, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़। जी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। हेडिंग लिख लें, इंग्लिश में मैंने वैसे लिख ली, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। जी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। अकलियत बेटे, किसी भी मुल्क में मजहबी एतबार से जो कौम थोड़ी तादाद में हो ना, उसको अकलियत कहते हैं। मसलन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा कौन है? हिंदू या मुसलमान? कम कौन है? तो हिंदू क्या है? बर्रे सगीर में ज़्यादा हिंदू थे और कम, तो बेटा मुसलमान क्या हुए? यहाँ क्या कहा है? चौथे पॉइंट में ये कहा कि बरसगीर में जितनी भी अकलियतें रहती हैं, हम उनके हुकूक का पूरा पूरा ख्याल रखें। बेसिकली ये पॉइंट किन को ठंडा करने के लिए था?
बोलिए ज़रा चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा बुक वाले ने, सब बोलिएगा। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएं। लो मेरा पुत्र, ये तो हो गए 3 बातें। अब मैंने चौथा पॉइंट आपको समझाना है, और इसी पॉइंट की वजह से ये पूरा टॉपिक है जो आपको समझाने लगा हूँ। हेडिंग क्या लिखी है हमने? आइन बनाना। इधर देखिए, आप जानते हैं बेटा मुल्क के अंदर 2 तरह की हुकूमतें होती हैं। एक होती है बेटा मरकज़ी हुकूमत, मैंने आपको 14 नुकात में भी समझाई थी ये बात। एक होती है मरकज़ी हुकूमत, और एक कौन सी होती है मुल्क में बेटा? सूबाई हुकूमत। यानी एक हुकूमत वो होती है जो पूरे मुल्क को देख रही होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामाबाद में हुकूमत है, और फिर 4 सूबे हैं मुल्क के, तो पंजाब की अलग हुकूमत है, सिंध की अलग हुकूमत है। वो जो हर सूबे की अलग हुकूमत होती है उसको कौन सी हुकूमत बोलते हैं बेटा? सूबाई हुकूमत। और वो जो पूरे मुल्क की है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अब उसने कहा बेटे मैंने आपको ये भी बताया था कि मुल्क को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उन रूल को जिस किताब में लिखा जाता है ना, उस किताब को क्या बोलते हैं? आइन। बोलो, उस किताब को क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। पाकिस्तान का भी एक आइन है। पाकिस्तान के निज़ाम को, पूरे मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है 1973 का, ठीक है, बना हुआ है। उसके मुताबिक मुल्क नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो नहीं चल रहा, लेकिन लिखा हुआ है कि चल रहा है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा हम पूरे बर्रे सगीर का, बोलिए बेटे क्या बनाएंगे? एक आइन बनाएंगे। आइन बनाने के लिए ना, आइन बनाने के लिए हम एक मरकज़ी टीम बनाएंगे, यानी एक बड़ी टीम बनाएंगे। इधर देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, बोलिए हम क्या बनाएंगे बेटा? एक मरकज़ी टीम बनाएंगे। वो मरकज़ी टीम बनाएगी कौन सी हुकूमत? जो बरे सगीर के सूबों की हुकूमतें हैं उनको हम कहेंगे कि तुम आइन बनाने के लिए क्या बनाओ? एक मरकज़ी टीम बनाओ। उस टीम का काम होगा कि वो पूरे बरे सगीर के लिए क्या बनाएगी? आइन। जब आइन बन जाएगा तो उसे हम दोबारा भेजेंगे कौन सी गवर्नमेंट को? सूबों को भेजेंगे। सूबों को भेजेंगे। जो सूबे उस आइन को कहेंगे कि ये ठीक बना हुआ है, उन सूबों पर हम उस आइन को नाफिज कर देंगे। जो सूबे कहेंगे कि ये आइन ठीक नहीं है, तो वो सूबे अपना नया आइन भी बना सकते हैं और अपना सूबा भी बरे सगीर से अलग कर सकते हैं, और अलग करके अपनी रियासत बनाना चाहें तो उनको रियासत बनाने का भी हक हासिल होगा। बोलिए, अब आपको याद करवाना है। मैंने बताया तीसरा पॉइंट, कौन लेकर आया था ये सारे पॉइंट? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने तीसरे पॉइंट में कहा कि क्या बनाई जाएगी? एक मरकज़ी टीम। वो मरकज़ी टीम कौन से बंदों से ली जाएगी? सूबाई बंदों से। उसका काम क्या होगा? जब आइन बन जाएगा, आइन बनने के बाद उस आइन को कहाँ भेजा जाएगा? जो सूबे कहेंगे कि ये आइन ठीक है, उन सूबों पर वो आइन, और जो सूबे कहेंगे कि ये आइन ठीक नहीं है, वो अपना नया आइन भी बना सकते हैं, नई रियासत भी बना सकते हैं। अब आइए ज़रा बुक पर, और बेटा तेज़ी के साथ बोलिए क्या लिखा हुआ है? आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, यानी मरकज़ी टीम बनाई जाएगी। आगे, जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान, यानी वो टीम बनाएंगे कौन? सूबाई असम्बलियाँ, ठीक है, वो बनाएंगी। आगे बोलो, आइन मुकम्मल हो गया तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, अप्रूव करवाने के लिए भेजा जाएगा। आगे बोलो, जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज से अलहदा होकर अपनी आज़ाद रियासत बना ले, अपनी आज़ाद हैसियत बना ले। बोलो बेटे, चारों पॉइंट समझ में आ गए? अब आखिरी पैराग्राफ पर लिखो रद्द अमल। रद्द अमल, रिएक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन। जी, रिएक्शन, रद्द अमल। अब बेटे ये चारों बातें उसने किससे आके की थी? मुसलमानों से और हिंदुओं से। जब बेटे ये चारों बातें कायदे आज़म ने और गांधी ने, मुस्लिम लीग के लीडर्स और हिंदुओं के लीडर्स ने जब इन चारों बातों को पढ़ा, तो बेटे चूंकि इस सारे पॉइंट में
پاکستان بننے کی بات کہیں پر بھی نہیں ہے، جبکہ قائد اعظم نے 1940 میں کس کی بات کی تھی؟ پاکستان میں۔ قائد اعظم نے جب دیکھا کہ اس میں کسی صورت بھی پاکستان کی بات نہیں ہے تو بیٹا میں نے قائد اعظم نے ان چاروں باتوں کو ماننے سے انکار۔ اچھا، گاندھی اور کانگریس نے بھی ان چاروں باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا تھا نا کہ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ اپنی الگ ریاست بنا سکتے ہیں، تو بیٹا اس سے پاکستان بننے کی راہ نکل سکتی تھی یا نہیں؟ اور یہ بات آپ کو نکل سکتی تھی، نکل سکتی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کرتے وہ اپنی آزاد حیثیت بنا لیں، یعنی وہ اپنی الگ ریاست بنا لیں۔ اب اس پوائنٹ سے ہندوؤں کو یہ لگا کہ وہ پاکستان بن سکتا ہے، تو ہندو پاکستان بننے کی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سن ہی نہیں سکتے تھے۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ اشارتاً تو بات کی ہے پاکستان بننے کی، واضح لفظوں میں کیوں نہیں کی کہ جاؤ جا کے پاکستان بنا لو؟ تو اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے قائد اعظم نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان چاروں باتوں کو، اور ہندوؤں نے بھی ان چاروں باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ کل آج آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، لیکن کل آپ نے مجھے ٹیسٹ دینا ہے جو سٹارٹ سے لے کر قائد اعظم کے 14 نکات تک ہوگا۔ سمجھ آ گیا ٹاپک بیٹا؟ اوکے جی۔